Hello everyone. Today we are going to continue with the chapter lines and angles. As you people know, we are doing the theorems of this chapter. We were on our fifth theorem, right? So we have to continue with the fifth theorem. Let's see what our fifth theorem is saying to us. Let's see if a transversal intersects two lines such that the pair of interior angles on same same side of triangle is supplementary. Right? Then two lines are parallel. राइट. जो हमने 6.4 करी थी उसमें हमने क्या करा था कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है और हमें गिवन था कि लाइंस पैरेलल हैं. अब ये हमारे पास क्या है, कन्वर्स है 6.4 थ्योरम का. कन्वर्स ऑफ 6.4 मीन्स हमें इंटीरियर एंगल्स का सम 180 गिवन है. व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दैट ए बी इज पैरेलल टू CD, right? So let's draw the diagram. This is the transversal line and these two are the parallel lines, right? This is angle R and this is angle S. This is A, this is B, this is C and this is D, right? So interior angles का सम हमें already given है. कितना दे रखा है? 180 डिग्री के इक्वल, right? सो गिवन वैल्यू कौन सी है हमारे पास? गिवन एंगल ARS प्लस एंगल CSR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री. तो हमारे पास हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट AB is parallel to CD. So let's start up. This is our equation number 1 to us. To prove, what we will do is see CSR, angle CSR and angle CSQ. Yellow Q. ये वाला. So this angle total, this and this CSR, this angle and CSQ, this angle is 180 degree. So we have angle CSR plus angle CSQ is equals to 180 degree, right? Why? Because they are linear pair. स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं तो क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल होंगे, right? So this is our equation number 2 and this was our equation number 1. तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है. तो अल्टीमेटली this thing is equals to this thing, right? So what we will write is angle ARS plus angle CSR is equals to angle CSR plus angle CSQ, right? So this is CSR cut हो गए, तो we are left with angle ARS is equals to angle CSQ, right? ये दो एंगल ARS एंड CSQ, ये दो एंगल हमारे पास क्या आ गए? इक्वल आ गए.
तो दीज एंगल्स आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं. सो these angles are corresponding angles, right? So hence AB is parallel to CD. This is what we have to prove, right? Okay, so let's start our next theorem number 6.6. Right? So we are going to prove theorem number 6.6. Let's see what a statement is saying to us. आपको 6.5 जो हमने करी है वो समझ आ गई. 6.5 में हमने क्या करा, कन्वर्स करा. किस चीज़ का कन्वर्स करा? 6.4 का. उसमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना था. पैरेलल लाइंस गिवन थी, इसमें हमने पैरेलल लाइंस प्रूव करी हैं. हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल गिवन था, राइट? अब हमारी जो 6.6 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.6, राइट? 6 चैप्टर की 6 थ्योरम हमने करनी है, राइट? अब हमारे पास क्या है वो थ्योरम गिवन है. हमारे पहले हम स्टेटमेंट लिख लें. इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? लाइन्स which are parallel to same line are parallel to each other. ये हमने इसके साथ वाले कितने सारे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है? each other, right? So अब हम करेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया. ये हमारी एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन और ये तीसरी पैरेलल लाइन. लेट इट बी L, M and N. This is angle 1, this is angle 2 and this is angle 3, right? This is transversal line A. So given क्या है हमारे पास कि L पैरेलल है M के एंड N पैरेलल है M के, राइट? L इज पैरेलल टू M मीन्स ये वाली चीज़ जो है L M के पैरेलल है, और N जो है हमारे पास, ये N जो है हमारे पास वो M के पैरेलल है, राइट? तो हमने ये प्रूव करना है कि अल्टीमेटली ये जो L है हमारे पास वो किसके पैरेलल होगा? N के पैरेलल होगा, राइट? सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज टू प्रूव L is parallel to N, right? So for proving that, what we will do is, see, in the given figure, angle 1 is equals to angle 2. Why? Because they are corresponding angles. Angle 1 is equals to angle 2, corresponding angle, right? Or angle 2 is equals to angle 3. Similarly, angle 2 is equals to angle 3. Reason being the same, they are also the corresponding angles. Right? So this is equation number 1, this is equation number 2. From 1 and 2, ये भी 2 के इक्वल है और ये भी हमारे पास 2 के इक्वल है, राइट? तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? एंगल 1 is equals to angle 3, right? Angle 1 is equals to angle 3. Angle 1 is equals to angle 3. तो ये भी corresponding angles होंगे हमारे पास. These are also corresponding angles.
और हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे पास वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। तो ये एंगल 1 है, एंगल 3 है। एंगल 1 है एल के ऊपर, एंगल 3 है एन के ऊपर, एन लाइन के ऊपर। तो अल्टीमेटली एल जो है वो पैरेलल आ गई हमारे पास एन के, हेंस एल इज़ पैरेलल टू एन, राइट। सो ये हमारी अगली दो थ्योरम्स थी लाइन्स एंड एंगल्स की। बाकी आप थ्योरम्स क्या कर लो, रिवाइज कर लो। अगली हम थ्योरम्स इसकी करेंगे कंटिन्यू कल। थैंक यू।